Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. So this is the General Science Best MCQ series part 3rd. In this particular lecture, we will again solve some questions based on your general science syllabus for your upcoming female supervisor exam. Alright, let's move towards the first question. Okay, starting with the first question. First few questions they will be from the disease part of your syllabus because the diseases are mentioned in your syllabus. So we will solve some questions from the disease part. First question is, which of these is false about whooping cough? And statement 1 is, it is caused by Bordetella pertussis. This is a true statement. Statement second says DPT vaccine is administered in children against it. This is again a true statement because जो DPT vaccine है, it is administered for the diseases like diphtheria, P for pertussis, which is also the common cough, and T for tetanus. All right. And statement third says it is also known as pertussis, therefore it's a true statement. Speaking of the statement D, that is it's a protozoan disease, so it's a false statement because whooping cough or pertussis जो है, it's not a protozoan disease, rather it's a bacterial disease. Okay. And speaking of the common symptoms associated with whooping cough, they include, initially there are mild fevers, okay, and eventually it develops into a high pitched sound making cough, which is known as whooping cough. Also in some countries, ये जो whooping cough है, there is another name for this disease that is known as 100 days cough. Alright. And the children can be immunized against whooping cough by administering them with the DPT vaccine. Alright. Moving on to the next question we have. Alright. Question is, bubonic plague is also known as, and the correct option is option B, that is Black Death. ठीक है. And speaking of, for example, जो plague है or plague, it is primarily a disease of rats. ठीक है. It's also a bacterial disease which is caused by Yersinia pestis. And this Yersinia pestis जो है, it is an endoparasite of gut of the rat flea. So it's a parasite in rat flea. प्लाग जो है, बुबोनिक प्लाग जो है या बुबोनिक प्लाग जो है, इट इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्लाग. ठीक है, जिसमें एक इट्स अ ब्लड डिजीज जिसमें बैक्टीरिया जो है दे मल्टीप्लाई इन ब्लड स्ट्रीम एंड दे लोकलाइज इन द लिम्फ नोड्स, आर्म पिट्स, नेक एंड ग्रॉइन एरिया. ठीक. सो इसमें ब्लड सीवियर, यू कैन से सीवियर ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं एंड जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, दे आर लिम्फ नोड्स, दे आर आर्म पिट्स, नेक एंड ग्रॉइन. And speaking of Black Death, so it is considered to be one of the most devastating pandemics in the human history, and it has resulted in around 75 to 200 million people की यूरोप में डेथ हुई है in the year 1346 से लेके 53 तक. तो it has been one of the most devastating pandemics. Next question. Question is, which of these is an incorrect match? First option is gingivitis. It is inflammation of gums. This is a true statement. Option B is mumps. It is related to swelling of salivary glands. This is again a true statement. अगर आपको specific कभी पूछेगा तो it is parotid gland, which is a type of salivary gland. Statement or option C says rabies is associated with aerophobia. This is a false statement because rabies जब किसी को हो जाते हैं उसे एरोफोबिया नहीं होता है बल्कि उसे हाइड्रोफोबिया होता है, यानी fear of water हो जाता है. Okay.
Hydrophobia means fear of water. Then you have option D, polio is related to atrophy of arm and leg muscle. This is a true statement. हमें बताना था incorrect match, इसलिए option C जाएगा इसका correct answer because rabies is associated with hydrophobia. So marking option C is the correct option. Next question. Question number 4 is chikungunya is a dash disease, and the correct option is option A, that is viral. चिकनगोनिया जो है इट्स अ वायरल डिसीज, इट्स एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय चिकनगोनिया वायरस. एंड स्पीकिंग ऑफ द सिम्टम्स ऑफ चिकनगोनिया, दे इंक्लूड number 1 fever and joint pain. Okay, these symptoms they typically occur in around 2 to 12 days after the exposure. ठीक, 2 to 12 days में ये सिम्टम्स आ जाते हैं. एंड दिस वायरस जो है इसका जो कैरिंग एजेंट है, दे आर द 2 टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज. ठीक है, सो मॉस्किटो जो है वो इसका कैरिंग एजेंट है. वन इज एडिस एल्बोपिक्टस, अनदर इज एगिप्टी. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज इनकरेक्टली मैच्ड. ऑप्शन ए इज कालाजार. इट इज रेलेवेंट टू लिशमानिया डोनोवनी बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय लिशमानिया. ठीक है, सो देयरफॉर इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. हेंस इस कालाजार को इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज लिशमैनियासिस. ओके, ऑल्सो अनदर नेम इज डम फीवर. ओके, इसका जो स्प्रेडिंग होता है, समटाइम्स दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑल्सो. स्प्रेडिंग जो है दैट इज बाय सैंड फ्लाई. ओके, इसमें जो सिम्टम्स आ जाते हैं दे इंक्लूड एन एनलार्ज्ड स्प्लीन एंड लिवर. इट्स ऑल्सो accompanied by the symptom of high fever. Okay, नेक्स्ट ऑप्शन इज एंटेरिटिस. इसके साथ ऑप्शन दिया गया है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस. इंटेस्टाइनलिस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. दिस इज ऑल्सो अ प्रोटोजोन. दिस वॉज द फर्स्ट parasitic protozoan known, basically giardia. It inhabits the upper parts of small intestine. About giardia I will mention. It inhabits the upper part of small intestine. इस केस में भी there is mild diarrhea which involves passage of the pale, bulky, foul-smelling, greasy stool. ठीक है, तो इसमें greasy stool पर पैसेज होता है जब किसी को giardiasis होता है. It causes enteritis which is also known as giardiasis. कभी आपसे पूछा जाएगा. Then we have option number C, that is filariasis, and इसके साथ दिया गया है Wucheria banucrafti. This is again a true statement because Wucheria banucrafti causes filariasis which is also known as elephantiasis. Okay, it is because फिलारिएसिस और एलिफेंटिएसिस में एनलार्जमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स होता है. एनलार्जमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स हो जाता है जैसे कि लेग्स. दैट इज़ वाई इस डिसीज़ का नाम है एलिफेंटिएसिस भी. देन यू हैव ऑप्शन डी, दैट इज़ टीनिएसिस. इसके साथ जो लिविंग स्पीशीज दिया गया है ऑप्शन में, दैट इज़ एस्कैरिएसिस लम्ब्रिकॉइड्स. एस्कैरिएसिस आप याद रखेंगे, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, तो हमें इनकरेक्टली मैच बताना था बिकॉज टीनिएसिस जो है इट इज कॉज्ड बाय टीनिया सोलियम. एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स जो है दिस कॉजेज एस्कैरिएसिस. ठीक, हमें इनकरेक्ट मैच बताना था इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Question is, which of these is a fungal disease? And the correct option is option B, that is ringworm. So option B correct option जाएगा, but we will explore the options. For example, malaria जो है, it is not a fungal disease, it is a protozoan disease. By that we mean malaria जो है, it is caused by a protozoan named Plasmodium. और इसकी कई सारी स्पीशीज़ हैं, जैसे प्लास्मोडियम वाइवेक्स एक स्पीशी है, प्लास्मोडियम फैल्सिपैरम एक स्पीशीज़ है, ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेल एक स्पीशीज़ है. ऑप्शन सी, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस. दिस डिसीज जो है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रिप्नोसोमियासिस, and this is a protozoan disease that is caused by a protozoa. And speaking of the protozoa which causes trypanosomiasis और sleeping sickness, उसका नाम है CC fly, लेकिन लिखा जाता है TSE, CC fly, ठीक है. ये ज़्यादातर हमें ट्रॉपिकल एरियाज़ में देखने को मिलता है. मतलब जगह अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसमें उसकी जो कंट्रीज़ हैं उनमें देखने को मिलता है. देन वी हैव दिस ऑप्शन ए, दैट इज़ येलो फीवर. येलो फीवर जो है, इट्स अ वायरल डिसीज़, ठीक. इट्स कॉज्ड बाय एर्बो वायरस और आर्बो वायरस, वट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस. इट इज़ अ हेमोराजिक डिसीज़ ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्टेड एडिस एग्बिटी. इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, दे इंक्लूड हेडेक, वोमिटिंग. इन सीवियर केसेस इसमें जॉइंडिस हो सकता है, दैट इज़ वाई इसका नाम पड़ा है येलो फीवर, ठीक है. फीवर से आप सिम्टम याद रखेंगे, फीवर. येलो बिकॉज इसमें सीवियर केसेस में जॉन्डिस हो सकता है, दैट इज़ वाई द नेम येलो इज अटैच्ड टू दिस डिसीज. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. All right, moving ahead, now we will be solving some questions from the vitamins section of your syllabus. Question says, the deficiency of vitamin C causes, option A is scurvy, this is true. Option B is delayed wound healing, this is again true. Therefore option C जो है वो correct जाएगा, because both A and B options जो हैं they are related to the deficiency of vitamin C. Okay, next question. Question is, xerophthalmia, it is due to the deficiency of, and the correct option is option A, that is vitamin A. xerophthalmia जो है ये कंडीशन हो जाते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे. इट्स कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, जिसका दूसरा नाम है रेटिनॉल. एंड स्पीकिंग ऑफ कि xerophthalmia जो है इसमें क्या हो जाता है, सो इट इज़ ड्यू टू द नॉन फंक्शन ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड ऑफ द कंजक्टिवा, ठीक है. इसमें जो ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोड्यूसिंग टीयर्स, दैट इज नोन एज द लैक्रिमल ग्लैंड. कभी ये भी पूछा जा सकता है, लैक्रिमल ग्लैंड जो है ये हमारी आइज़ में टीयर्स प्रोड्यूस करता है, एज देयरफॉर हमारी आइज़ को मॉइस्ट रखता है. इट कीप्स आइज़ मॉइस्ट. ओके, एंड एज अ रिजल्ट इसमें जो कंजक्टिवा होता है इन आवर आइज, दैट बिकम्स एक्सट्रीमली और यू कैन से सीवियरली ड्राई हो जाता है. एक्सट्रीमली और यू कैन से सीवियरली ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से xerophthalmia हो जाता है. समटाइम्स इट्स सेड कि केराटिनाइजेशन जिसको कहते हैं ऑफ कंजक्टिवा हो जाता है, ठीक. दैट्स वाई ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, क्योंकि ये डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए के साथ की वजह से हो जाता है. बिकॉज विटामिन ए जो है ये हमारी गुड और यू कैन से हेल्थी आइज के लिए इम्पॉर्टेंट है. टू कीप आवर आइज हेल्थी वी शुड कंज्यूम विटामिन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज अ वाटर soluble vitamin? And the correct option is option B, that is vitamin C. Speaking of vitamins, we have some fat soluble vitamins
and we have water soluble vitamins. Speaking of fat soluble vitamins, कौन कौन से हैं? They are K, E, D and A. Vitamin K, E, vitamin D, vitamin A, they are the fat soluble vitamins. अब बचे कौन? We are left with vitamin C and vitamin B complex के जो vitamins हैं they are water soluble vitamins. तो इसको याद कैसे रखोगे? फैट कीड़ा आप याद रखोगे, दैट्स KEDA, they are fat soluble vitamins. बचा फिर वहाँ पे vitamin C and vitamin B complex, तो वो है water soluble. हमें बताना था water soluble vitamin, therefore option B will be the correct option. Next question. Question is, which of these requires the presence of sunlight for its synthesis? And the correct option is option D. ठीक है, विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी में, हमारी स्किन सेल्स में वो सिंथेसाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. दैट इज़ वाई डॉक्टर्स ऑफन रिकमेंड देयर पेशेंट्स to sit in for some minutes or for 10-15 minutes daily in the sunlight. ठीक है, because sunlight में हमारा synthesis of vitamin D होता है, and vitamin D as you know it regulates the absorption of calcium and phosphorus levels in a small intestine. It also is responsible for the mineral deposition in the bones and teeth. That is why vitamin D is linked to the health of our teeth एंड बोन्स. स्पेसिफिकली अगर बात करें तो बोन्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है विटामिन डी. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज निक्टैलोपिया, it is linked with the difficulty in, and the options are taste, vision, smell and touch, and the correct option is option B, that is vision. okay, निक्टैलोपिया जो है इसका मतलब होता है जिसे हम कॉमनली नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं. And निक्टैलोपिया और नाइट ब्लाइंडनेस जो है इट इज़ रिलेवेंट एंड लिंक टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए और जिसका दूसरा नाम है रेटिनॉल. ठीक है, व्हाट हैपन्स इन दिस पर्टिकुलर केस, इस डेफिशिएंसी में निक्टैलोपिया और नाइट ब्लाइंडनेस में देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन विजन. खास तौर पे नाइट में क्या होता है, देयर इज़ डिम लाइट. ठीक है, डिम लाइट में जो विजन है वो लो हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, जिसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस कॉमनली, और निक्टैलोपिया भी उसका दूसरा नाम है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, नाउ वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द लाइफ प्रोसेसेस पार्ट ऑफ योर सिलेबस विच इंक्लूड्स फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, मिनरल एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स. तो वहाँ उस सेक्शन से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग करेक्टली. यू हैव सेक्शन ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आपको क्वेश्चन को डिकोड करना है बेसिकली, एंड बिलो गिवन ऑप्शंस आर ABCD. सो आपको मैच करने हैं इनको. फर्स्ट सेज मिनरल एब्जॉर्प्शन जो है दैट इज A, B, C and D. मिनरल एब्जॉर्प्शन इज रिलेटेड टू रूट्स, क्योंकि प्लांट्स में जो रूट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ से प्लांट्स मिनरल एब्जॉर्प्शन करते हैं फ्रॉम द सॉइल. सो ए को जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रूट्स. ऑप्शन बी इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के साथ रिलेवेंट है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज लीव्स, इसलिए बी को जाएगा फर्स्ट. सी इज वाटर एब्जॉर्प्शन, सॉरी वाटर ट्रांसपोर्टेशन. वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो प्लांट्स में रिस्पॉन्सिबल टिश्यू होता है दैट इज जाइलम. सो ऑप्शन सी को जाएगा 4. देन यू हैव ऑप्शन डी, दैट इज फूड ट्रांसलोकेशन. ठीक है, फूड ट्रांसलोकेशन के लिए प्लांट्स में जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है फ्लोएम टिश्यू, इसलिए ऑप्शन डी को जाएगा 3. सो यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा ऑप्शन मैच करा है. 2, 1, 4, 3, A, B. सो यू हैव A, B, C एंड D. इसको जाएगा ऑप्शन C. ठीक है, दैट इज 2, 1, 4. यस, 2, 1, 4, 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन जाएगा. ठीक, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज डैश एक्ट्स एज अ रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स फॉर प्लांट्स, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज सॉइल. ठीक है, इट इज़ बिकॉज क्योंकि जो मिनरल्स फॉर प्लांट्स हैं जो कि मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के
लेंस के थ्रू हम देखते हैं या क्लासीफाई करते हैं, दीज मिनरल जो है इनका जो प्राइमरी सोर्स होता है ऑफ दीज मिनरल्स जो है दैट इज रॉक्स। एंड जब इन रॉक्स की क्या हो जाती है, वेदरिंग हो जाती है, they get accumulated into the soil, and the new minerals which are essential for plants, ठीक है, they are mostly inorganic elements which form a major part of the rocks which are found in the rocks basically। तो सॉइल में ये जब रॉक्स वेदरिंग के थ्रू आ जाते हैं, फिर सॉइल जो है वहीं से प्लांट्स जो है उन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई सॉइल जो है दैट इज द रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स फॉर प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्रोसिस particularly leaf tissue is caused due to the deficiency of dash in plants। फर्स्ट वी नीड टू नो कि नेक्रोसिस किसको कहते हैं। नेक्रोसिस जो है इट इज़ द टर्म फॉर डेथ ऑफ टिश्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ प्लांट्स जो है जब लीफ टिश्यू का डेथ हो जाता है यानी नेक्रोसिस हो जाता है, इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑप्शन ए सेज कैल्शियम and magnesium। Ca for stands for calcium and Mg stands for magnesium। Option B says Cu and K, that is copper and potassium, all right। And option A, Ca for calcium and Mg for magnesium, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। दैट मीन्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम, दीज ऑल मिनरल्स जो हैं अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो विच इवेंचुअली कॉजेज नेक्रोसिस और डेथ ऑफ द टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन इन्वॉल्व्स द कन्वर्शन ऑफ, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज नाइट्रोजन टू अमोनिया। और अगर आपको केमिकली देखना हो N2 का मतलब होता है नाइट्रोजन एंड अमोनिया की जो फॉर्मूला है दैट इज NH3। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है दैट इज द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पीशीज, ठीक है। दिस इज व्हाट इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। इसमें हम बायोलॉजिकल स्पीशीज़ जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, फंजे हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे कि राइजोबियम एक स्पीशीज़ है जो कि मेंशन्ड है यहाँ पे। वो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं यानी जो पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑप्शंस आर एजोटोबैक्टर एंड राइजोबियम, this is true, both of these are nitrogen fixing species। Option B is Anabaena and Nostoc, this is these two species are also responsible for nitrogen fixation, that means option A and B both are correct। Azotobacter, Rhizobium, Anabaena and Nostoc, these all four are the nitrogen fixing species, ठीक है। बट दीज आर नॉट द ओनली वंस, इनके अलावा भी बाकी स्पीशीज़ हैं, बाकी लिविंग स्पीशीज़ हैं। सम आर फंजे, सम आर साइनोबैक्टीरिया, सम आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल राइट, नाउ विल बी solving questions from the ecology, environment, ecology and biodiversity part of your syllabus, okay। So the first question is which of these pyramids is always upright, and the correct option is option C, that is pyramid of energy, ठीक है, based on 10% law, ठीक। See, speaking of these pyramids or biomass, number or energy, what are these actually? Basically जो different food chains हैं, as you know हमारे food chains जो हैं they have different as primary producers, we can say producers, and they have consumers।
So in consumers, then you have like primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. Similarly, for example, you have primary producers. ठीक है. So based on जब हम इन different and ये जो consumers हैं या producers हैं, they form the trophic levels. ओके. एंड बेस्ड ऑन दीज ट्रॉफिक लेवल्स हम इनको डिवाइड करते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, तो वो बनाता है pyramid ऑफ नंबर. बेस्ड ऑन द ड्राई वेट दैट फॉर्म्स द pyramid ऑफ बायोमास. एंड बेस्ड ऑन द एनर्जी और यू कैन से एनर्जी फ्लो. ठीक है. वी हैव द पिरामिड ऑफ एनर्जी. बट 10% लॉ के अकॉर्डिंग pyramid ऑफ एनर्जी जो है हर हर फूड चेन के लिए, हर ट्रॉफिक लेवल्स के लिए जो एक फूड चेन में एग्जिस्ट करते हैं, pyramid ऑफ एनर्जी जो है इट इज़ ऑलवेज अपराइट. ये हमेशा आपको इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, दैट इज़ अपराइट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा. लेकिन बायोमास एंड नंबर इन सम फूड चेन्स दे में बी अपराइट एंड इन सम फूड चेन्स दे में बी इन्वर्टेड. ठीक. लेकिन एनर्जी जो है वो हमेशा अपराइट रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज सेयर. ठीक है. सी. जो कम्युनिटीज़ होते हैं जो किसी भी एरिया या गिवन रीजन या एरिया को इनहेबिट करती हैं, दीज कम्युनिटीज़ जो हैं दे हैव एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ इज़ कि इनका जो कंपोजिशन है या इनका जो स्ट्रक्चर है इसमें चेंजेस आ जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन देयर स्ट्रक्चर एंड देयर कंपोजिशन. ठीक है. ये चेंजेस जो आते हैं इट इज़ ड्यू टू जो चेंजिंग एनवायरनमेंट की कंडीशंस होती हैं. ठीक है. जब माहौल बदलता है, जो किसी भी एरिया में इनहेबिटेंट्स होते हैं, लिविंग स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं, वो भी बदल जाती हैं, उनमें भी चेंज आ जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं, उनके कंपोजिशन में चेंज आ जाती है. ठीक है. एंड एज अ रिज़ल्ट क्या है कि अल्टीमेटली पूरी उस कम्युनिटी में, उस पूरे रीजन में चेंज आ जाता है, जिसको हम जनरली इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंडर पढ़ते हैं. ठीक है. और ये जो एंटायर सीक्वेंस है कम्युनिटीज़ का, जिसमें सक्सेसिवली यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से चेंजेस आ जाती हैं, इट्स नोन एज सेयर. ठीक. उस सीक्वेंस को कहते हैं सेयर. ठीक है. खुद जो है इट इज़ दी व्हाट इज़ नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट. क्वेश्चन इज hierarch and hierarch are the examples of, and the correct option is option C, that is ecological succession. ठीक है. इन प्लांट्स स्पेसिफिकली कर अब बताना किन में होता है, प्लांट्स में होता है. एज यू नो कि प्लांट्स जो हैं बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, नेचर ऑफ द हैबिटेट बेसिकली, कुछ प्लांट्स जो हैं जो बड़े वेट एरियाज़ में पाए जाते हैं. ठीक है. और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ड्राई एरिया जैसे कि डेजर्ट्स में पाए जाते हैं. डेफिनेटली वो दो प्लांट जो डिफरेंट एक्सट्रीम्स में, मतलब जो वेट एरियाज़ में पाए जाते हैं और जो ड्राई एरियाज़ में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, वो बिल्कुल सेम नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. लेकिन बोथ दीज वेट एंड ड्राई जो है दे आर एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ प्लांट्स. ठीक है. क्योंकि बिल्कुल पानी दैट वेट में जो होंगे उनको बिल्कुल हाई अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगा, जो ड्राई होगा उनको बिल्कुल कुछ नो और ज़ीरो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगा. ठीक. देयरफॉर दे आर द टू एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ प्लांट्स और द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स. लेकिन एक होता है जिनको हम कहते हैं मीजिक प्लांट्स. ठीक है. ऐसे प्लांट्स जिनको न ज़्यादा पानी की किल्लत होती है, न ज़्यादा पानी की टू मच अवेलेबिलिटी होती है. तो ये एक बैलेंस है इन दो प्लांट्स का. हाइड्रार्क में क्या होता है, जब प्लांट्स वेट एरिया से या वेट कंडीशन से इस मिजिक कंडीशन में जाते हैं, उनको कहते हैं हाइड्रार्क. ठीक है. तो इट्स इकोलॉजिकल सक्सेशन इन वेट प्लांट्स फ्रॉम वेट एरियाज टू मिजिक, दैट इज़ एक बैलेंसड एरिया में जहाँ जाते हैं. तो दे हैव नीदर टू मच वाटर नॉर लेस वाटर. ठीक. और जब मिजिक कंडीशन से वो एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस में जाते हैं. ठीक है. जो ड्राई प्लांट्स हैं, जो कि ड्राई एरियाज़ के प्लांट्स होते हैं, अगर वो मिजिक कंडीशंस में रहना स्टार्ट करें तो इस कंडीशन को कहते हैं ज़ेरार्क. ठीक है. एंड बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. ठीक है. वही हमने बताया था कि जब एनवायरनमेंट
बदल जाता है तो लिविंग स्पीशीज़ में भी चेंजेस आ जाती हैं, उसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनदर नेम ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज डैश साइकिल, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। आई कैन नॉट रिकॉल कि कौन सा एग्जाम था, बट रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ था जिसमें ये एज अ क्वेश्चन आया था, बट घुमा फिरा के इन अ डिफरेंट लैंग्वेज ये क्वेश्चन आया था। आई कैन नॉट रिकॉल द एग्जाम, बट इट वॉज आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर। एंड दीज न्यूट्रिएंट साइकिल और दीज बायोजियोकेमिकल साइकिल जो हैं ये दो तरह के होते हैं। वन इज द गैसियस वन एंड अनदर वन इज द सेडिमेंट्री वन। ऑलराइट, जो इस वाली कैटेगरी में आते हैं गैसियस में, इनका जो रिजर्वायर होता है दैट इज जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, दैट इज द एटमॉस्फेयर और एयर। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन इसमें एग्जाम्पल के तौर पे है। फॉर एग्जांपल कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसी तरह कार्बन साइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैसियस वन। एंड स्पीकिंग ऑफ सेडिमेंट्री वन, इनके लिए जो रिजर्वायर होता है दैट इज द अर्थ's क्रस्ट। सॉरी, अर्थ's क्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो एग्जाम्पल के तौर पे आएगा दैट इज सल्फर साइकिल, इसी तरह फॉस्फोरस, पी फॉर फॉस्फोरस साइकिल। एग्जाम्पल में क्वेश्चन आया था विच आई वॉज टॉकिंग अर्लियर कि इस में से क्वेश्चन आया था, शायद इट वॉज आस्क्ड नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल किस टाइप ऑफ साइक्लिंग के साथ रेलिवेंट है, और सल्फर और फॉस्फोरस किस टाइप ऑफ साइकिल के साथ रेलिवेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन अ लेक इज, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज जू प्लैंकटन। ठीक है, सी अगर हम लेक की बात करें, लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक, इसकी जो फूड चेन है वो इस तरह कुछ होती है। जो यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं दे आर द फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, देयरफॉर दे फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक, इन फाइटोप्लैंक्टन्स जो है इनको खाते हैं जू प्लैंक्टन्स। ओके, देयरफॉर जू प्लैंक्टन्स जो है वो बनते हैं क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं उनको बोलते हैं हम कंज्यूमर्स। ऑलराइट, नाउ सिंस जू प्लैंक्टन्स डायरेक्टली फीड ऑन द primary producers, therefore they are also known as the primary consumers, and they form the second trophic level in an aquatic ecosystem. ठीक है, उसके बाद like that of a lake. ठीक है, then you have in zooplankton जो है इनको for example smaller fishes खाते हैं। ठीक है, now they are again the consumers, but fishes they feed on the primary consumers, इसलिए वो बनते हैं secondary consumers, and they form the third trophic लेवल। इसी तरह इट गोज ऑन। ठीक, इसलिए हमें बताना था सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन अ लेक, इट इज दैट ऑफ द जू प्लैंक्टन्स विच फीड ऑन द फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। सी यू सम अदर टाइम।